Hello and welcome to NTPL online classes. Now in this lecture we are going to discuss about electromagnetic waves, one of the important chapter in your class 12th syllabus. However, this chapter is mostly important for your board examination and JEE mains and NEET examination. This chapter is not included in JEE advanced syllabus. Another point is this chapter is very small chapter. Only few minutes will be taken to complete this chapter. There are some factual informations and one question is often asked from this chapter. So although this is a small chapter, but it is very important for your board as well as JEE mains and NEET preparation. So let's begin with our electromagnetic waves discussion. Now what is wave? We have discussed in class 11 syllabus. What is wave? It is disturbance in a medium because of which energy propagation takes place. So basically waves means propagation of energy. There are two types of waves. Electromagnetic waves which does not require medium and mechanical wave which requires medium. Mechanical wave we have already discussed in our class 11 topic, that was sound wave. Sound wave is an example of mechanical wave. Now in this lecture we are going to discuss about electromagnetic wave. Such type of wave does not require any medium for their propagation. They can travel in any medium, in solids, in liquids, in gases and even in vacuum. What about mechanical wave? They cannot travel in vacuum. Mechanical wave, sound wave vacuum में travel नहीं कर सकते, लेकिन electromagnetic waves सारे medium में travel कर सकते हैं. Now this wave, it is made up of two parts, electro and magnetic. Electro word came from electric field and magneto word came from magnetic field. So there are two types of field, electric field and magnetic field, present in this electromagnetic wave, and they are oscillating. So if someone will ask you how electromagnetic waves propagate, so you will say they propagate by oscillating electric and magnetic field. This is the mechanism of electromagnetic wave propagation. So electromagnetic waves propagate with oscillating electric and magnetic field. How they are produced? They are produced by accelerated charges. Whenever a charged particle accelerates, जब भी कोई charged particle accelerate करता है, what is the meaning of acceleration? Velocity change होना. अगर कोई charged particle का velocity change कर रहा है, तब वो charged particle electromagnetic waves produce करते हैं. और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन सबसे पहले मैक्सवेल ने कहा था और इसे मैक्सवेल्स थ्योरी कहते हैं. हियर ओनली आई विल ट्राई टू गिव यू वन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड वन ऑफ द फेमस एग्जांपल इज विजिबल लाइट. टुडे यू कैन सी एनीथिंग, it is because of electromagnetic waves. So light is an example of, visible light is an example of electromagnetic waves. We'll further discuss the 7 spectrum of electromagnetic waves, the radio wave, microwave and so on in the later part of this lecture. One important point to note here is Maxwell's theory also discussed about the 4 equations of Maxwell's 4 equation and displacement current. Maxwell की theory में Maxwell के 4 laws, 4 equations और displacement current के बारे में भी चर्चा है. However, we are not discussing them today. We will discuss them when we will arrive at alternating current and we will be thorough through the concept of current. जब हम लोग current के बारे में अच्छे से जान लेंगे तब हम लोग displacement current और Maxwell's 4 equations को वहाँ मैं डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि वहाँ आपको समझने में वो आसानी होगी. अभी आप उसे छोड़ देंगे. Now in this regard we have 2 important events that we have to remember. The first one was Hertz experiment. Hertz का experiment जो कि 1887 में हुआ था, and in Hertz experiment Hertz was successful in producing low frequency electromagnetic wave, for example radio wave. Hertz ने 1887 ईस्वी में पहली बार लो फ्रीक्वेंसी, जिसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, वैसा फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किया था. इसका एग्जाम्पल था रेडियो वेव. बहुत समय तक लार्ज फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं हो पाया था. बट देन केम द फेमस इंडियन साइंटिस्ट J.C. Bose, Jagdish Chandra Bose, and this contribution of Jagdish Chandra Bose was asked in
12th board examination 2020. This year only this was asked. What was the contribution of Jagdish Chandra Bose in electromagnetic wave theory? What was his contribution? Jagdish Chandra Bose succeeded in producing electromagnetic waves of much higher frequency. He was the first scientist to produce much higher frequency of electromagnetic wave. Example, X-ray, gamma rays. And today we find many applications of X-rays and gamma rays. Now we have some key points about electromagnetic waves. These points you have to remember thoroughly. The first point is how electromagnetic waves are produced because of electric field and magnetic field which oscillate mutually perpendicular to each other. So here in this diagram, just try to see this diagram, very important. Let's suppose this is x-axis, this is y-axis and this is z-axis. And there is a convention how we take x-axis, y-axis and z-axis. x-axis, y-axis और z-axis कैसे लेते हैं, इसका एक कन्वेंशन है. हमेशा राइट हैंड का पाम, चारों फिंगर एक्स के तरफ जाना चाहिए सच दैट पाम वाई को देखे तो थंब जेड को देखना चाहिए. तो अगर आप राइट हैंड के चारों फिंगर को देखिए एक्स के तरफ ले गए, वाई तो बाहर निकला हुआ है बोर्ड के, तो देखिए पाम बाहर की तरफ देख रहा है, थंब इधर की तरफ. इसको बोलते हैं एक्स क्रॉस वाई इज जेड. दिस यू हैव टू रिमेंबर. सो इन एक्स डायरेक्शन देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है तो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है. इसका इक्वेशन एसएचएम जैसा होगा. जो भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, उसको ई नॉट कहेंगे साइन ओमेगा टी. ओमेगा वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी है माइनस के जेड. के क्या है? एंगुलर वेवलेंथ. के क्या है? एंगुलर वेव नंबर. के क्या है? एंगुलर वेव नंबर. ओमेगा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स 2πf होता है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं. और के क्या होता है? एंगुलर वेव नंबर 2π/λ होता है. हम लोग वेलोसिटी भी जानते हैं, c इज इक्वल्स टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, या इसी को आप ओमेगा बाय के भी कह सकते हो. c है वेलोसिटी ऑफ लाइट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं वो लाइट के स्पीड से ही चलते हैं. सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट के स्पीड से चलते हैं. तो c का वैल्यू आप ओमेगा बाय के भी लिख सकते हो या f/λ भी लिख सकते हो. c लाइट के स्पीड का एक और फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और इसका एक और फार्मूला होता है 1/√ε0 इंटू म्यू नॉट. What is epsilon naught? This is permittivity of a medium. What is epsilon naught? Permittivity of medium. ये प्रॉपर्टी होता है किसी भी मीडियम का, परमिटिविटी. जैसे आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा वैसे ही परमिटिविटी भी एक प्रॉपर्टी होता है. सिमिलरली म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ये भी एक प्रॉपर्टी होता है. ये सब चीज, ये कांस्टेंट्स हैं, ये दिए रहते हैं इसका वैल्यू. परमिटिविटी ऑफ मीडियम का वैल्यू भी हमें पता होता है. म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का भी वैल्यू पता होता है हमें. तो इनको यहाँ रख के हम लोग सी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एंड दिस कम्स आउट टू बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. I will tell you one important thing. Based on this formula only, in JEE Advance 2018, JEE Advance 2018 में 6 नंबर का सवाल आया था इस दो फार्मूले पे. एक पैसेज बेस्ड सवाल था, उन्होंने यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड सवाल पूछ दिया था. उन्होंने कहा था देखो वेलोसिटी होता है ई नॉट बाई बी नॉट, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट में क्या रिलेशन है. तो हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू बी नॉट इंटू सी, और सी क्या है? मीटर पर सेकेंड. बस यही आंसर था. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट इंटू मीटर पर सेकेंड. और दूसरा पार्ट था सवाल का कि वेलोसिटी एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट के यूनिट में क्या रिलेशन होता है. तो अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं. सो सच काइंड ऑफ फॉर्मूलाज कैन बी यूज्ड इन यूनिट एंड डायमेंशन कॉन्सेप्ट ऑल्सो. सो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग, in electromagnetic wave there are two fields. One is electric field, another one is magnetic field. They are perpendicular to each other and they are also perpendicular to direction of propagation of electromagnetic waves. So there are three things: electric field, magnetic field and direction of propagation of wave, and they all are mutually perpendicular to each other. तीनों एक दूसरे के perpendicular होते हैं. So here x डायरेक्शन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया है, y डायरेक्शन में इसको y मैंने कहा है और इधर मैग्नेटिक फील्ड दिखाया है, एंड दिस वन इज z डायरेक्शन वेयर इन विच डायरेक्शन द वेव इज प्रोपगेटिंग. z डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रहा है.
इस एक्स डायरेक्शन में देखिए ये जो पार्टिकल्स हैं इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है साइन के ग्राफ के अनुसार। तो ये जो लाइन बना हुआ है ये ग्राफ, ये इसी प्लेन में है। आपको बस ये फर्स्ट लोब बनाना है, सेकंड लोब नहीं बनाना है, फर्स्ट लोब। ये पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, इस तरह से ये साइन के अनुसार ऑसिलेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन, क्योंकि एक्स में इसलिए ये एक्स लिखा है, मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। पॉइंट टू बी नोटेड इज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है लेकिन हम लोग यहां जेड लिखे क्योंकि के के साथ वेव के इक्वेशन में वही टर्म लिखते हैं जिस एक्सिस में, जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है। वेव किधर जा रहा है? जेड में। एक्स में वेव नहीं जा रहा है, एक्स में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। वेव किधर जा रहा है? जेड में। तो यहां क्या लिखेंगे? के जेड। सिमिलरली दिस इज इन द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये तो प्लेन में है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये वाला प्लेन के बाहर परपेंडिकुलर दिख रहा है अगर आप सही से गौर से इस इमेज को देखेंगे तो। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, ये ऐसे है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड का भी इक्वेशन वैसा ही लिखेंगे क्योंकि वाई में है इसलिए बी वाई, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड अगेन, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज इन वाई बट वेव इज प्रोपेगेटिंग इन जेड डायरेक्शन, इसलिए यहां सेम होता है। ये टर्मिनोलॉजी सेम होता है, याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ई नॉट, मैग्नेटिक फील्ड में बी नॉट। एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है इस केस में, वाई में मैग्नेटिक फील्ड है, और वेव किधर जा रहा है? जेड डायरेक्शन में। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज all these three, electric field, magnetic field and direction of propagation of wave, all are perpendicular to each other. And how we can find the direction of propagation of wave? By E cross B. Now what is the meaning of E cross B? E cross B का मतलब E के तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ राइट हैंड के चारों फिंगर को ले जाइए सच दैट पाम B को देखे, तो थंब आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव बताएगा। फॉर एग्जाम्पल ये x है, y आउट ऑफ द प्लेन है और z इधर है। अब मैं x की तरफ E है तो राइट हैंड के चारों फिंगर को ले जा रहा हूँ, ऐसे भी ले जा सकता 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 हूँ। लेकिन आपको इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आपको राइट हैंड के चारों फिंगर को ले जाना है कि पाम मैग्नेटिक फील्ड को देखे। तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर है, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए थंब इधर की तरफ। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव बताएगा। सो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किसके ऊपर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रॉपर्टीज के ऊपर।